Thank you so much for coming in for this very special brief by the Capitol Police. Yesterday I completed, and this has been my way of presenting our work in whatever assignment I have been beforehand also. After every year, I try to project the work that we've done, and it is a white paper. White paper means we have done some good things which will be presented, and there are some limitations also. There are some places where we need to improve also. That also will be presented in the PPT. So it is not that we are here to say, we did so much good work and this and that. It is a bare analysis of whatever we've done, be it good or be it bad. But this is an attempt to just be transparent to the public, because ultimately it is the public for whom we are working for. So whatever we've worked for in this past year, be it good or be it bad, this is some sort of our performance review that we will be presenting. Also ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी वजह से ये है और हमने ये किया है वो किया है. इसलिए just to let go of this idea कि because I am here to ये सब हो रहा है, we are going to have different officers presenting different parts of the presentation. जो भी इस एक साल में पिछले जुलाई से इस जुलाई में जो काम हुआ है, it is a testament to our teamwork. अच्छा काम हुआ है, बुरा काम हुआ है, जैसा भी है, we all stand together. I at the helm of affairs, my SDPO, my DYSP, my all OCs, and all other officers in different positions in the capital office also. So we all stand together, and this is just a very honest attempt at bringing out the facts to you. We'll be presenting figures also, facts also, in a very transparent manner, and we will leave it open to the citizens' judgment, so as to what we worked for, how we performed, and what are the areas that we need to improve upon. Thank you so much. I would now like to invite OCWPS Reena Sona ma'am to please come up and start the presentation. Thank you. Which are crime detection, law and order, public outreach, welfare measures, new initiatives, challenges and way forward. And I'll be taking the presentation of crime detection part. Under the crime data of Itanagar Police, under the crime data of Itanagar Police, the crime heads are divided into three parts: heinous crime, non-heinous crime, and special acts. Under heinous crime, first of all, I would like to say that we have total number of registered. We have registered a total number of 528 cases, out of which we have worked out 443 cases, and our success rate is 85% in all the cases. So under heinous crime, the headings are murder, attempt to murder, dacoity, robbery, rape, kidnapping, abduction for ransom, kidnapping, abduction, and total cases registered are 35, and we have worked out all the cases. Under non-heinous crimes, we have these headings for molestation, eve-teasing, hurt, accident, theft, CBT, cheating, forgery, extortion, cruelty by husband and relatives, other IPC. The total number of cases registered in non-heinous crime are 409 cases under the review period, and we have solved 327 cases out of 409, and 82 cases are pending to be investigated. So I would honestly admit that we are lagging behind theft cases. We have still 82 cases pending with us, but we are focusing on that as well, and we'll be trying to solve it as soon as possible. Under special acts, we have registered a total cases of 84, and out of which we have solved 81 cases, and 3 are pending to be investigated, under which the headings are POCSO Act, NDPS Act, APGP Act, PDPP Act, and other acts. Major achievements, good works done by Capitol Police, which is divided into 3 categories: action against narcotics under Operation Dawn,
Major recoveries, sensational cases. Before starting the slide, I would say that Capital Police has always adopted deterrent measures to prevent the drug menace. So the pictures, the figures are testament to our efforts. Total number of cases registered under NDPS Act were 34 under the review period of 1 year. Number of arrests have been 44 persons. Total seizure has been 2.167 kg heroin, 18.519 kg cannabis ganja. I would like to add that the 2.167 kg is worth, heroin is worth 3 crores. Major recoveries in theft cases are recovery of two-wheeler. We have recovered 63 numbers of two-wheelers which are worth approximately 71 lakhs. We have recovered four-wheeler 5 numbers which are worth 80 lakhs approximately, and other recoveries which includes jewelry and other electronic items worth around 5 crores. The other slides will be carried forward by OC Crime SI Sushant Jha. Thank you so much. So, जो पहला केस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है अरेस्ट ऑफ मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान ने आकाशदीप में दो बहनों का रेप और मर्डर करके उसे अरेस्ट किया गया था, फिर वो डिस्ट्रिक्ट जेल से भाग गया था। हमें उसके लोकेशन के बारे में पता चला और उसके बाद हमने एक स्पेशल टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ ईटानगर बनाई और इस टीम ने मुजीबुर रहमान को ट्रेस किया आसाम से ट्रेस करने के बाद इसको ल्यूर किया ईटानगर में और इसको अरेस्ट किया जुलांग से। 12 साल से जो कैदी भागा हुआ था, ईटानगर पुलिस ने 12 साल से जो कैदी भागा हुआ था रेप और मर्डर का दोषी, उसे ईटानगर पुलिस ने पकड़ा है। मैं एक मणिपुर बेस्ड जो ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ईटानगर पुलिस को ये पता चला कि ईटानगर में मणिपुर से भी ड्रग्स आ रहा है। उन्होंने जो मणिपुर बेस्ड सप्लायर है उसे इंट्रैप किया। मणिपुर बेस्ड सप्लायर को इंट्रैप करने के बाद उसको अरेस्ट करके करीबन 350 ग्राम्स अराउंड 350 ग्राम्स हेरोइन उसके पोजीशन से सीज किया, उसको अरेस्ट किया। ये जो 350 ग्राम हेरोइन है उसका मार्केट वैल्यू अराउंड 35 लाख है। इससे मणिपुर बेस्ड जो ड्रग सिंडिकेट है उसको ईटानगर पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ ईटानगर एंड ओसीपीएस ईटानगर वर एबल टू कर्व डाउन। नाउ आई लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द धेमाजी बेस्ड सिंडिकेट, ड्रग सिंडिकेट है जिसको ईटानगर पुलिस ने ब्रेक डाउन किया था। हमें पता चला कि नाहरलगन के लिए कार्गो जा रहा है ड्रग्स लेके। ईटानगर पुलिस अंडर लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ एंड ओसी उन्होंने उस कार्गो को इंटरसेप्ट किया और करीबन 120 ग्राम हेरोइन उसके पोजीशन से सीज किया, उस आदमी को अरेस्ट किया। इससे जो धेमाजी बेस्ड जो सिंडिकेट है, ड्रग सिंडिकेट है, उसको हमने तोड़ा। पहले मैंने आपको बताया हमने मणिपुर सिंडिकेट को तोड़ा, फिर धेमाजी सिंडिकेट को तोड़ा। अब मैं आपका ध्यान होलोंगी सिंडिकेट की तरफ लाना चाहता हूँ। हम सबको ये ओपन सीक्रेट है कि ईटानगर में जो ड्रग्स आता है उसका काफ़ी हिस्सा होलोंगी से भी आता है। तो होलोंगी बेस्ड जो ड्रग सप्लायर था उसको चिंपू ओसी ने आइडेंटिफाई किया और चिंपू ओसी की टीम ने उस सप्लायर को अरेस्ट किया। उनके पोजीशन से करीबन 150 ग्राम अराउंड 15 लाख वर्थ ऑफ हेरोइन सीज किया। एक और केस है जो काफी इंटरेस्टिंग केस है, चीटिंग केस था, 2 करोड़ की चीटिंग केस। चिंपू बेस्ड एक बिजनेसमैन को गुवाहाटी बेस्ड एक गैंग ने टेंडर देने के बहाने उनसे पैसे ले लिए। अब करीबन 2 करोड़ रुपए उनसे ले लिए और उनसे 1 करोड़ लेके वो भाग गए थे। जब चिंपू ओसी इंस्पेक्टर नीरज निशांत की टीम को पता चला कि ये एक्यूज भागा हुआ है, उन्होंने इस एक्यूज को फॉलो किया, आसाम से इसका अरेस्ट किया और अराउंड 92 lakhs रिकवर कराया और अभी ये केस अंडर ट्रायल है और बाकी पैसे भी रिकवर होने के प्रोसेस में। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ जो मर्डर केस है। आप लोगों को अगर याद हो तो विवेक विहार एरिया में एक मर्डर हुआ था जिसमें एक मिठाई दुकान में काम करने वाले आदमी ने अपने कलीग को मार के डंप करके वो बंगाल भाग गया था। जब हमें ये पता चला हमने उसे वेस्ट बंगाल में जाके फॉलो किया, उस आदमी को अरेस्ट किया है और हम आज ये इंश्योर कर रहे हैं सिर्फ उसका अरेस्ट नहीं कि हम उसका कन्विक्शन भी इंश्योर कराएंगे। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा कैपिटल पुलिस ने जो बाइक थेफ्ट का रैकेट को बस्ट किया उसके ऊपर। हम सबको पता है कि बाइक थेफ्ट, खासकर एमडी बाइक थेफ्ट एक बहुत बड़ा इशू है जो ईटानगर के लोग सफ़र करते हैं। ईटानगर पुलिस टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर निशान
ने एक गैंग को आइडेंटिफाई किया जो 2019 से बाइक चोरियां कर रही है। इस गैंग को आइडेंटिफाई किया, अरेस्ट किया और करीबन 53 बाइक्स जो ईटानगर से 2019 से अभी तक चोरी हुई है उनको रिकवर करके उनके राइटफुल ऑनर तक पहुंचाया। जैसा कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग है उसके बारे में आप सब अवगत, मैं एक बार आप लोगों का मेमोरी थोड़ा जॉट डाउन करा देता हूँ। हमने 3 ट्रैफिकिंग रिंग को बस्ट किया है इस पास्ट ईयर में। सबसे पहला जो ट्रैफिकिंग रिंग था वो ये था कि 2 बच्चियां यहाँ से गायब हो गई थी। एक पुलिस वाले का भी इन्वॉल्वमेंट था और गुवाहाटी के पास से वो रिकवर हुई थी। हमने उन 2 बच्चियों को रिकवर किया है, जितने भी एक्यूज है उनको अरेस्ट किया है, चार्जशीट कर दिया है इस केस को, अभी ये केस अंडर ट्रायल है। दूसरा जो नेटवर्क जो चिंपू का जो बहुत फेमस नेटवर्क है जिसमें 28 लोग अरेस्ट हुए हैं, आप सबको पता है कि आसाम से लड़कियां लाई जा रही थी, छोटी बच्चियों को उनको ट्रैफिक करके लाया जा रहा था, प्रोस्टिट्यूशन रिंग में उनको शामिल किया जा रहा था और एसेलियंट्स उनको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे थे। हमने उन 5 बच्चियों को रिकवर किया है, हमने जितने भी पिंग्स है सबको अरेस्ट किया है और हम सेक्सुअल एसेलियंट्स को भी हमने अरेस्ट किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व है, इवन टुडे 2 more arrests have happened in this case। जो 2 लोग भागे हुए थे उनको भी आज वुमेन पुलिस टीम ने अरेस्ट किया है। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ दिल्ली बेस्ड जो नेटवर्क था, हमें पता चला था कि 2 बच्चियों को जो घर से गायब है उनको दिल्ली ट्रैफिक किया जा रहा है। हमने बच्चियों को रिकवर किया। हमें पता चला कि दिल्ली में उनको प्रोस्टिट्यूशन, अरुणाचल की बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में घुसाया जा रहा है। हमने उन दोनों बच्चियों को रिकवर किया। जो यहाँ में जो लोग थे जो उनको ट्रैफिक कर रहे थे उनको अरेस्ट किया और दिल्ली जाके जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने वाला जो किंगपिन था जीत खत्री, उसे अरेस्ट किया और कस्टमर्स को अरेस्ट किया। तो पिछले 1 साल में कैपिटल पुलिस ने 3 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रिंग को बस्ट किया है और करीबन 10 बच्चियों को रिकवर किया है। अब जो क्राइम डिटेक्शन पार्ट है आज का प्रेजेंटेशन का वो खत्म हो गया। अब मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर पार्ट में लेके आना चाहता हूँ। जो लॉ एंड ऑर्डर पार्ट है उसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। प्रिवेंटिव एक्शन जो ILP का होता है, 107 का एक्शन है वो, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट और कम्युनिटी पेट्रोल। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि ईटानगर का प्रिवेंटिव एक्शंस में 107 पीस का बाइंड डाउन, ये चाहे ILP का ऊपर एक्शन हो, वो वन ऑफ द बेस्ट है इन स्टेट। आप देख सकते हैं हमने 107 बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर 610 लोगों से लिया है और हमने ILP में करीबन 900 लोगों को एक्सटर्न आउट किया है। ये फिगर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईटानगर के पास अपना कोई चेक गेट नहीं है। हम बाकायदा हम गली जाके ILP चेक करके लोगों को एक्सटर्न आउट करा रहे हैं, बिना जो ILP वायलेटर्स है उनको एक्सटर्न आउट करा रहे हैं। अब मैं आपका लाना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट पे, जिसे हम बंदोबस्त ड्यूटी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। आपको पता है ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और सारा जितना भी पॉलिटिकल मूवमेंट है, जितना जो मेजर जितने भी मूवमेंट्स है, VVVIP मूवमेंट्स ईटानगर से होता है। आपको मैं एक डाटा की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एवरी 36 आवर्स ईटानगर पुलिस इज बिजी इन ईटानगर पुलिस इज बिजी इन वन लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट। हर 36 घंटे में एक अरेंजमेंट होता रहता है। हमने 43 VVIP अरेंजमेंट देखे हैं इस 1 साल में। 196 हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखे, इसमें एग्जाम ड्यूटी, रिलीजियस प्रोसेशन ये सब है और करीबन हमने 4 लाख के आसपास क्राउड प्रोसेस किया है। अब मैं आपका जो हमारा एक नया इनिशिएटिव है कम्युनिटी पेट्रोल, मैं उसकी तरफ लाना चाहता हूँ। SP साहब जब पिछली बार करीबन 2 हफ्ता पहले जब फेसबुक लाइव पे गए थे तब बहुत लोगों ने ये बात उठाया है कि IG पार्क और इन एरियाज में जो है वो IG पार्क और कुछ चुनिंदा एरियाज में प्रॉब्लम है, तकलीफ होता है। तो हमने कम्युनिटी पेट्रोल का इनिशिएटिव किया जिसमें पुलिस वाले कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जो भी सेंसिटिव एरियाज है उनको पेट्रोल करते हैं। जो पहली बार जो बच्चे मिलते हैं उनको हम समझाते हैं, उनके पेरेंट्स के नोटिस में लाते हैं और उनको दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करने को कहते हैं। ये कम्युनिटी पेट्रोल जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, ये पिछले 14 दिन में हमने देखा है और जो इंसिडेंट्स हैं IG पार्क और बाकी एरिया बात वाले एरिया से वहाँ काफ़ी कम हुए हैं। मैं 2 टेस्टिमनी है जो पब्लिक की जो 2 टेस्टिमनी है मैं वो आपके सामने प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लेकिन ऐसा पेट्रोलिंग करने से कच्ची का नीचे में आदमी बैठ कर खोद के मैंने हरा भरा करता है, क्या क्या कुछ उल्टा करते रहता है, जोगर होर होता है, वो भी शांति हो गया अभी। अच्छा जो सोसाइटी को सिर्फ नहीं करता है, हमारा स्टेट को भी खत्म करेगा और हमारा कंट्री को भी खत्म करेगा।
तो इसीलिए हम तो आप पुलिस प्रशासन से आपको खास करके रिक्वेस्ट किए ड्रग्स जो ये ड्रग्स का जो होता है इसे खत्म करने के लिए हम यूथ भी आपका साथ देगा हमेशा, और हमारा बाजार के लोग भी है, ये लोग भी साथ दे रहे हैं, हम लोग आया है यहाँ से में वो सभी लोग साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार पब्लिक आउटरीच से पहुंचने से पहले फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, हमारा जो आज का ईयर रिव्यू है, मैंने और मेरी कलीग रीना मैडम ने आपको क्राइम के बारे में बताया, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया। अब मैं हमारा जो पब्लिक आउटरीच या वेलफेयर मेजर जो हम ले रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप सबको खोया पाया अभियान के बारे में अगर मीडिया फ्रेटर्निटी को फ्रेंड्स को बहुत पता ही होगा, मैं फिर भी थोड़ा बता देना चाहूँगा। हमने खोया पाया अभियान लॉन्च किया है, जिसमें अगर आपका फ़ोन गुम गया है तो आप कंसर्न थाना ईटानगर, नीति विहार, चिंपू, वहाँ आप रिपोर्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपका फ़ोन आपको वापस मिले। इस अभियान के तहत हमने पिछले एक साल में करीबन 300 फ़ोन, अराउंड 300 फ़ोन्स हमने रिकवर किए हैं और उनके राइटफुल ऑनर तक रिस्टोर किए हैं। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, खोया पाया अभियान के तहत हमने पिछले एक साल में अराउंड 300 फ़ोन्स रिकवर किए हैं और उनके राइटफुल ऑनर तक उनको हमने रेस्टिट्यूट किए हैं। उसके बाद जो हमारा जो ऑपरेशन डॉन है, जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस का जो ऑपरेशन डॉन है, ऑपरेशन डॉन जो है वो फोकस करता है हार्म रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन और सप्लाई रिडक्शन पे। अब मतलब डिमांड रिडक्शन जो, ताकि लोगों में ड्रग एब्यूज अवेयरनेस आए, उसके लिए हमने बहुत सारे यूनिक इनिशिएटिव्स लिए थे। जैसे हमने एक रॉक कॉन्सर्ट कराया था, हम MMA इवेंट के साथ हमने टाई अप कराया था, हमने मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज कराया था। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यंगर जनरेशन एंड वी वर एबल टू रीच आउट आवर टारगेट ऑडियंस। काफ़ी लोगों को हम ये मैसेज पहुंचा पाए हैं ड्रग एब्यूज के अगेंस्ट, जो अवेयरनेस है वो पहुंचा पाए। मुझे एक और चीज़ बताते हुए बहुत गर्व है कि with a sense to give back to the community, we have organized multiple blood donation camps over the year. We have organized around 4 blood donation camps and we have around 647 donors have participated. These 647 donors are our own, मतलब चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो CRPF को, हमारे अपने जो है वो। और मुझे ये बताते हुए गर्व है कि one such blood donation camp हमारा स्टेट रिकॉर्ड भी हमने हेल्ड किया कि हमने 260 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया था। तो दिस इज आवर इनिशिएटिव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, मैं फिर रिपीट कर दूं, 4 ब्लड डोनेशन कैंप, 647 डोनर्स और एक पर्टिकुलर ब्लड डोनेशन कैंप में हमने 260 यूनिट ब्लड डोनेट करवाया। उसके बाद हमारा एक और इनिशिएटिव है फर्स्ट एड ट्रेनिंग फॉर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। अब आपको पता ही है कि कुछ भी, चाहे नेचुरल कैलामिटी हो, चाहे कोई भी घटना हो, ERSS सबसे पहला रिस्पॉन्ड करता है। तो हमने ERSS को और सक्षम बनाने के लिए उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी थी, ताकि अगर उनको मान लीजिए किसी कोई बुजुर्ग आदमी मिल गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो रहा है, अगर उनको वो मिले तो उनको वो फर्स्ट एड देके हॉस्पिटल सेफली पहुंचा सके। तो हमने ट्रिम्स के साथ कोलैबोरेट करके हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनको हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी थी। अब मैं आपको एक और हमारा जो इनिशिएटिव है उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमने APSSB के तहत जो कांस्टेबल का एग्जाम्स हुआ था, उसके लिए हमने एक सुपर 50 लॉन्च किया था। ये सुपर 50 में 50 लोगों को हमने ट्रेन किया था। उनको हमने फिजिकल ट्रेनिंग, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था उसके लिए ट्रेनिंग दी थी, जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ट्रेनिंग दी थी, और उसमें से करीबन 9 लोग सेलेक्ट भी हुए थे। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव था कि हम बच्चों को APSSB एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे, ये उस इनिशिएटिव के लिए स्लाइड है। ये जो सुपर 50 कोर्स हमने कराया था, ताकि जो APSSB के थ्रू जो कांस्टेबलरी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें वो सही ढंग से मतलब पास हो पाए। इस सुपर 50 में करीबन 9 लोग क्वालिफाई हुए हमारा जो ये कोर्स था। उसके बाद हमने एक और इनिशिएटिव अपनाया है, जिसका नाम सक्षम है। सक्षम के तहत जो पुलिस वाले के जो बच्चे हैं अक्रॉस स्टेट, जो पुलिस वालों के बच्चे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको हमने फ्री स्कॉलरशिप ललन्स कोचिंग के थ्रू दिलाया है और वो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अराउंड हमने 8 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है, वो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 8 के 8 नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनेंगे। फिर ये स्पोर्ट्स हम रेगुलर लेवल पे, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ड्रग एब्यूज के साथ, जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो बच्चे रिहेबिलिटेशन करके वापस आ जाते हैं वो दोबारा बुरी संगत में वापस ड्रग हैबिट में चले जाते हैं। तो हम उनके साथ कांटेक्ट रखते हैं, हम स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज रेगुलरली करते हैं,
उनको हम मोटिवेट करते हैं कि वो दोबारा ये हैबिट में ना करें। अब हमारा जो पब्लिक अवेयरनेस या आउटरीच के अलावा हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लाए हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो हमारा क्राउन ज्वेल है ई सर्विसेज, उसके तरफ। ई सर्विसेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जो सर्टिफिकेट होता है वो आप अपने घर से हासिल कर सकते हैं, एक दिन में हासिल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, टेनेंट वेरिफिकेशन, डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और नो सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर से आपको मिलेगा। आपको कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, कोई थाने में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। मैं ये बताते हुए मुझे और भी गर्व है कि इस ई सर्विसेज सिस्टम को स्कॉच अवार्ड, मुझे पूरी कंट्री लेवल पे जो अवार्ड है स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन डिलीवरिंग सर्विसेज। इसके बारे में और बताने के लिए जो हमारे ई सर्विस ब्रांच के जो हेड है निकीश जी को मैं बोलूँगा कि प्लीज। पुलिसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हम क्रिमिनल पकड़ते हैं वो तो एक एस्पेक्ट है, वो सबको पता ही रहता है, बट दूसरा एस्पेक्ट है जो हम सर्विसेज देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रिवेंटिव मेजर भी है। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो वो हम फ्यूचर पे वो किसी ऐसी एक्टिविटी पे ना इंडल्ज हो जिसपे जो पब्लिक के लिए हित के लिए होना चाहिए। तो कई बार हमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है, कई बार जॉब लगती है तो उसके लिए भी वेरिफिकेशंस आते हैं। तो वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो हमारा ऑफिस में एक ब्रांच है सर्विसेज ब्रांच, उसके तहत वो जारी किया जाता है। टेनेंट वेरिफिकेशन भी होता है हमारे यहाँ पर, और डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन भी होता है, और एनओसी फॉर टेंडर पे जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको टेंडर के लिए एनओसी देना पड़ता है। वो डीसी या किसी भी जगह पे आप जब कुछ चीज के लिए जाते हो, कुछ परमिशन चाहिए होता है आपको, सबसे फर्स्ट आपको एसपी कैपिटल ऑफिस में आना पड़ेगा। कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और लॉस सर्टिफिकेट, आपका कोई भी सामान 1 लाख के अंदर तक का गायब होता है। अगर आपका किसी क्राइम के तहत वो लॉस हुआ है तो आपको एफआईआर करना पड़ेगा। जस्ट आपका लॉस हुआ है, चाबी गुम हो गया या कुछ भी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड गायब हो गया, तो आपको लॉस सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आपको इस पोर्टल से मिलेगा। ये पोर्टल हमारे पास 2021 से ये एक्टिव है, सितंबर से। और पिछले जो प्रीवियस ईयर था हमारा 2023 में, उसमें हमने कुछ इनोवेशन करा है। क्या हुआ था कि पहले हमें एटलीस्ट 14 डेज लगता था, हमें 2 वीक से उससे ज्यादा भी लगता था। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो ऐसा है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ सर्विसेज का वेरिफिकेशन करना है, कुछ भी सर्विसेज हो, आपकी जॉब लगी हो, आपको लॉस चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो क्या होता कि हर थाने में जाता था। पहले कैपिटल बड़ा भी था, आपको पता है नाहरलगुन भी हमारा ही पार्ट था, तो 8 थानों में वेरिफिकेशन होता था। इससे क्या होता था कि साइमल्टेनियसली रिपोर्ट नहीं आ पाता था। तो हम लोगों ने इसको ओवरकम करने के लिए क्या करा, हमारे पास एक सिस्टम है सीसीटीएनएस का, सबको पता है, उस पे क्राइम रिकॉर्ड वर्चुअली स्टोर हो जाता है। और दूसरा एक सिस्टम है आईसीजीएस, वो जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है। तो हम क्या होता है कि दोनों इंटरलिंक्ड है। तो हमने इनोवेशन क्या करा, और उस पे डाटा जो आता है वो पूरे ऑल इंडिया का आता है, ठीक है। हम तो पहले डिस्ट्रिक्ट ही कवर करते थे, तो हमने क्या करा, हमारा ये ई सर्विसेज का पोर्टल आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है वो हमारे ई सर्विसेज का पोर्टल है। वहां पे हम लॉगिन करते हैं, दिस इज द सेम लिंक, इस सेम लिंक से ही हम जाते हैं। आप भी, एक पब्लिक भी उसी से घुसेगा, हम भी उसी से लॉगिन करके हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारा क्रेडेंशियल डिफरेंट होता है। देन हमारा ये इंटरफेस है, ये हमारा इंटरफेस सर्विसेज प्लस का ऐसे दिखता है, इसमें हम सारे स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम यहाँ पे घुसते हैं तो हमने अब इसमें डिलीवरी की जो मैकेनिज्म है उस पे ये करा कि हमने वो आईसीजीएस को ले आए। आईसीजीएस को ले आने से क्या हुआ कि हम जो भी अगर किसी क्रिमिनल का नाम, हम फादर का नाम अगर डाल के, या बहुत तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, उस पर एफआईआर नंबर से सर्च कर सकते हैं, थाना वाइज सर्च कर सकते हैं, स्टेट वाइज सर्च कर सकते हैं। तो जब हम किसी अक्यूज का नाम या जो क्रिमिनल है उसका नाम हम डाल के, फादर का नाम डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम उसका जितना भी एफआईआर है वो देख सकते हैं। पहले क्या होता था, कुरुंकुमे में कोई क्राइम करता है, वो कैपिटल में आके एनओसी लेकर टेंडर ले लेता था। अब वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कुरुंकुमे में निकले, केरला में निकले या कहीं भी निकले, हम उसको एनओसी नहीं देते। पहले ये हम सक्षम नहीं थे, हम नहीं कर पाते थे। जब से इंटीग्रेशन हुआ है तो हम ऑल इंडिया का क्राइम देख सकते हैं। तो आफ्टर लॉगिन हम वो स्टेप को हम लाते हैं, वो आईसीजीएस का इंटरफेस आप देख सकते हो, हम उस पे लॉगिन करते हैं और अपना जो भी अपना बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द वेब पोर्टल, मैंने डाला नहीं स्क्रीनशॉट, तो वो क्या होता है कि उस पे हम लॉगिन करके वो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं और उस हिसाब से हम इमीडिएटली देते हैं। जो चीज 14 दिन लगता था वो 1 दिन या 1 दिन से कम लगता है। किसी को आने की जरूरत नहीं है, आपके ईमेल आईडी में वो सर्विसेज मिल जाएगा घर पे ही, घर से अप्लाई करिए और घर से सर्टिफिकेट मिले। जो आते हैं ऑफिस में क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है तो वो जानने के लिए आते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, जल्दी कर दीजिए, बट उनको हम बताते हैं कि इमीडिएटली हो चुका है। कई बार हमारे पास एप्लीकेंट आते हैं, उनका ऑलरेडी डिलीवरी हो चुका होता है,
उनको पता ही नहीं होता ईमेल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो साइबर से जाके भरवाते हैं, बट हम उनको रिकमेंड करते हैं कि अपना ही ईमेल आईडी उस पर डाला करें। एंड नेक्स्ट इज ये हमारा स्टेटस अभी का, ये हमारा जो सोशल मीडिया था उस पर किसी ने कहा था कि आई वॉज एबल टू अप्लाई ऑनलाइन एंड गेट द सर्टिफिकेट इन जस्ट 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स भी ज़्यादा है, मैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें सिर्फ नाम सर्च करना तो सारा डिटेल्स दिखता है, इनका नाम मारेंगे तो हमें डिटेल्स दिख जाता है कि इनके अगेंस्ट FIR है कि नहीं है, और वो जो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है। और ये हमारा टोटल एप्लीकेशन से 7156 एप्लीकेशंस आए थे, उसमें से प्रोसेस से ये मतलब है कि जो रिजेक्ट भी हो गया है या जिनका FIR मतलब केसेस निकला था और जो डिलीवर हुआ सब मिला के 7096 एप्लीकेशन हमने प्रोसेस कर दिया है। एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, जो अभी चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि कुछ आर्म्स के रिलेटेड भी होते हैं तो उनको वेरीफाई फर्दर करना ही पड़ता है, इस कारण से वो अंडर प्रोसेस है राइट नाउ। ये एकदम करंट डाटा है। हमारा जो ई-सर्विसेज है वो हमारा एक्चुअली हमारा क्राउन ज्वेल है। वी हैव इंश्योर्ड कि जो सर्विस डिलीवरी है, जो हमारी गवर्नमेंट की भी जो सोच है कि सरकार आपके द्वार पहुंचे या सेवा आपके द्वार तक पहुंचे, उसके तहत हमने ये इंश्योर किया है कि आपको जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको आपके घर पे मिले, आपको उसके लिए कहीं जाना ना पड़े। लेडीज एंड में जो नए इनिशिएटिव्स हैं उसमें मैं आपका ध्यान हेल्थ कैंप्स के ऊपर लाना चाहता हूँ। ये काफ़ी दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंटेंशन एज वेल कि पुलिस ऑफिसर्स जो होता है उनका हेल्थ ओवर टाइम ड्यू टू लॉन्ग आवर्स एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, उनका जो हेल्थ होता है वो डिटोरिएट हो जाता है। तो SP कैपिटल ने एक हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज किया था। उस हेल्थ कैंप के तहत ईटानगर में जितने भी पुलिस वाले हैं और उनके परिवार हैं, उनका SP ऑफिस में हेल्थ चेकअप हुआ था इन कोलैबोरेशन विद ट्रिम्स। करीबन 674 लोगों ने ये हेल्थ चेकअप का फ़ायदा उठाया। इसमें कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उसका स्क्रीनिंग हुआ था। और मुझे ये बताते हुए और भी अच्छा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन है और वो थाने में है जहाँ और टेंशन ही मतलब जहाँ टेंशन बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, तो हमने उन्हें सॉफ्ट पोस्टिंग हुआ, उनके हेल्थ के हिसाब से उनकी पोस्टिंग हुई, उनकी हेल्थ के हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने कम किया ताकि जो पुलिस पर्सनल है वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। अब आप सबको पता है 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं। दिस न्यू क्रिमिनल लॉज आर, अब ये हमें जो कॉलोनियल एरा के जो हमारे लॉज थे उससे बाहर निकल के जो नया भारत है उसका कानून है। उस कानून के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो इस कानून को फील्ड पे इस कानून को इम्प्लीमेंट कराएंगे, उन पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए कैपिटल पुलिस ने एक हैंडबुक बनाया है जिसका नाम है अन्वेषण संग्रह। ये नए कानून के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बताता है, नए कानून में पब्लिक को क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में भी बताता है, और जो जनरल प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का उसको बेहतर बनाने का तरीका बताता है। हमें गर्व है कि इस हैंडबुक का लॉन्च ऑनरेबल जस्टिस श्री कारदा कहते ने किया था, ऑनरेबल जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट श्री कारदा कहते ने किया था अलॉन्ग विद DGP अरुणाचल प्रदेश। ये हैंडबुक जो है इनका नाम अन्वेषण संग्रह है और ये न्यू क्रिमिनल लॉज के को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ पिंक PCR की तरफ। यह हमारा एक और इनिशिएटिव है। हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है उसमें हमने ये नोटिस किया कि वुमेन सेंट्रिक कुछ नहीं है। अगर औरतों का कंप्लेन होता है तो दे आर मच मोर कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद वुमेन पुलिस पर्सनल। तो एक 24/7 रिस्पांस सिस्टम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन फॉर्म ऑफ पिंक PCR इज देयर, जो जनरली वो सारे कंप्लेंट्स भी लेता है बट इट स्पेशलाइजेस इन कंप्लेंट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा ये जो पुलिस ऑफिशियल ऑफ द मंथ जो हमारा इनिशिएटिव है उसके तरफ। इन ऑर्डर टू एनकरेज द पुलिस फोर्स दैट इज वर्किंग ऑन द फील्ड, दिस इज द इनिशिएटिव दैट वी हैव लॉन्च्ड। ये दिसंबर 2023 से इनिशिएटिव चल रहा है। मैं एक बार फटाफट से आपको इन सारे लोगों से परिचित कराना चाहूंगा। इंस्पेक्टर किक्सी यांगफो इज द OC ऑफ ईटानगर पुलिस स्टेशन। ही इज अ 2002 batch sub inspector and one of the most prominent police officers of the state. His work especially in combating drug trade in the state has been recommended across all quarters. संदीप यादव जो है, मैंने जो खोया पाया अभियान के बारे में आपको बताया था, खोया पाया अभियान को शुरुआत करने वाला लड़का जो है वो संदीप यादव है। Who has done exceptional work और इसने ये नाहरनगर में था, फिर ईटानगर में था। He has recovered around 500 cell phones in his career. फिर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा तामो बखंग साहब के साथ। ये सब इंस्पेक्टर हैं 2022 बैच के, नेरिस के प्रोडक्ट है और अभी चिंपू थाने में पोस्टेड है। तामोज स्पेशलिटी इज थेफ्ट एंड बर्गलरी
और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि तामो हैज सॉल्व वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल केसेस ऑफ थेफ्ट। करीबन 2 करोड़ की चोरी का, लोकल ज्वेलरी की चोरी का केस तामो बखंग साहब ने सॉल्व किया था, जिसके कारण उन्हें ये जो फरवरी महीने में पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ मिला था। कांस्टेबल राजू भगत इज आवर, जो मैंने आपको कहा था कि एवरी 36 आवर्स में कैपिटल पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट देखना पड़ता है। ही इज द मेन रिस्पॉन्सिबल कि वो सारे फोर्स को यहाँ से वहाँ डिप्लॉयमेंट बनाना, फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना का काम राजू भगत साहब करते हैं। अप्रैल के महीने में हमारा 3-way टाई था। हमारे एमटीओ साहब CHM ईटानगर एंड CHM WPS, MTO is responsible for movement of troops, CHM Itanagar is responsible for the functioning of Itanagar police station, and CHM WPS Sunita madam is responsible for the functioning of women police station Itanagar। तो उनको उनके काम के लिए हमने पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ बताया था। मई के महीने में कांस्टेबल मोली रियांग है। मोली रियांग नीति विहार थाने में पोस्टेड है, एंड मोली रियांग इज अ ऑलराउंडर। वो क्राइम का काम भी करते हैं, फंक्शनिंग भी कराते हैं, वो ड्रग ऑपरेशन इंडियन नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी हिस्सा है। उनका ये मल्टी फैसिलिटेड जो एबिलिटीज है उनके लिए उनको मोली रियांग साहब को हमने पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ में डिक्लेयर किया था। जून महीने का पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ हमारे पादम पादी साहब थे। पादम पादी साहब इज अगेन अ वेरी एक्सेप्शनल पुलिस ऑफिसर, बट उनकी 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, since joining Itanagar PS he has arrested around 20 drug peddlers, seizing drugs worth lakhs. He has arrested a cheat from Rajasthan after almost a year-long manhunt. He has arrested a person who has cheated people of Arunachal of around 10 crores from Rajasthan. And एक डिग्निटरी का जो इंस्टाग्राम पेज को यूज करके पैसा मांगने का जो करते हैं, उसका केस को भी उन्होंने क्रैक किया था गुजरात जाके। तो इसीलिए पादम पादी साहब को हमने जून महीने का पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया था। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा हमारा साइबर क्राइम हैंडबुक N75/75 इनिशिएटिव का। ये जो हमारा अब देखिए साइबर क्राइम इज ऑन द राइज, तो हमारी पब्लिक को ये अवेयर कराने के लिए कि साइबर क्राइम अलग अलग, जैसे सेक्सटॉर्शन है, आपको स्पूफ कॉलिंग है, इन सब चीज़ों के थ्रू जो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या आपके साथ गलत हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के बारे में हमने बताया है इस हैंडबुक में, और उससे कैसे बचे ये भी हमने बताया है इस हैंडबुक में, ताकि हमारी जो जनता है वो इसका शिकार ना हो। और जिस दिन ये साइबर क्राइम हैंडबुक लॉन्च हो रहा था 26 जनवरी के आसपास, उस दिन हमने 75 फोन्स भी हैंड ओवर किए हैं लोगों को, जो खोए हुए 75 फोन है वो भी हैंड ओवर किए हैं। मैं चाहूंगा कि एक टेस्टिमनी हम सुने कि जब आदमी को उसका खोया हुआ फोन मिलता है तो उसे कैसा फील होता है, ये आप सुने प्लीज। आपका है? मेरा फोन फर्स्ट फाइनली मिलने वाला है ना, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कोई हम भी एक्सपेक्ट नहीं था। आपको कैसा लग रहा है? आपसे फाइनली मिलने वाले हैं आपका सेल फोन को? There is nothing which makes us more happy than to hear thank you Capitol Police for finding our lost phone। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है सुन के कि हम किसी की जिंदगी में एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट हम खुशी ला सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ईटानगर वुमेन पुलिस स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी। ईटानगर वुमेन पुलिस स्टेशन को ISO द्वारा सर्टिफाई किया गया है, और ये आप लेटर दे सकते हैं वुमेन कमीशन की तरफ से जो कॉन्ग्रेचुलेट कर वुमेन पुलिस ईटानगर को सर्टिफिकेशन मिलेगा। अब तक जो हमने आपको बताया है वो हमने जो काम किया है उसके बारे में बताया है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो हम चैलेंजेस, जो हमें लगता है कि हमारे लिए मेजर चैलेंजेस हैं, उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला है एडेप्टिंग टू द न्यू क्रिमिनल लॉज।
जब नए कानून देश में 1 जुलाई से लागू हुए हैं, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। हम तैयारी कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना है, नए सिस्टम्स के साथ अपने आप को तैयार करना है। तो वो हमारे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद है कि हम आगे चल के और बेहतर बनेंगे इसमें। दूसरा है रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग अब्यूज विक्टिम्स। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न नॉट ओनली फॉर ईटानगर पुलिस बट फॉर एंटायर स्टेट। अब इफ समवन इन योर फैमिली इज अ ड्रग अब्यूज विक्टिम, तो आप रियलाइज करेंगे कि उनको आप रिहेबिलिटेशन के लिए भेज देते हैं, वो वापस आते हैं, फिर भी उनको वापस ड्रग्स के तरफ वापस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट करें, उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम डी एडिक्शन का जो उनका फेज है उसमें उनकी मदद करना चाहते हैं। उनमें स्किल डेवलपमेंट, जो कुछ जिनमें जैसा स्किल है वो स्किल डेवलपमेंट करने का, और जो छोटे मोटे पेडलर्स हैं जो अरेस्ट होकर सजा काट के वापस आ चुके हैं, उनको हम रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दोबारा से ड्रग बिजनेस में ना आए। तो दिस इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट चैलेंज, रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग अब्यूज विक्टिम्स। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू टैकल थेफ्ट। ईटानगर में जो चोरी की घटनाएं हैं, जैसे मैडम ने भी आपको बताया होगा, हम 50-50% है हमारा, हमने 50% सॉल्व किया है, 50% अभी तक पेंडिंग है। चोरी जो खासकर मोटरसाइकिल चोरी, घरों में चोरी, ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप आने वाले दिनों में देखेंगे सक्सेस भी आपको दिखाई देगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जिसमें एसडीपीओ ईटानगर के अंदर स्पेशल टीम्स बनाए जाएंगे जो चोरियों को ईटानगर में कम करेगी और चोरों को पकड़ने की कोशिश करेगी और आपका जो चोरी हुआ सामान है आप तक लौटाने की कोशिश करेगी। अब मैं हमारे जो टारगेट्स हैं, हमने अपने आप के लिए सेट किया है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला टारगेट है हमारा ISO सर्टिफिकेशन फॉर ईटानगर, चिंपू एंड नीति विहार पुलिस स्टेशन। आपको मैंने बताया था वुमेन पुलिस स्टेशन को ऑलरेडी ISO सर्टिफिकेशन हो चुका है। हमारी कोशिश है कि ईटानगर, चिंपू और नीति विहार को भी ISO सर्टिफिकेशन बने और हम राज्य में पहले स्टेट बने, राज्य में पहले डिस्ट्रिक्ट बने जिसका हर थाना ISO सर्टिफाइड है। दूसरा है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हम एक लाइब्रेरी कम रिक्रिएशनल सेंटर खोल रहे हैं बच्चों के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन में। हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आए, चाहे वो अब्यूज विक्टिम्स हो, चाहे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो, हमारे पास आए और थानों में आए तो थानों में उनको एक सेफ स्पेस महसूस हो। मैं कुछ देर के बाद आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा, मैं दिखाना चाहूँगा कि हमने थानों को भी चाइल्ड फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका तहत ये एक स्टेप है जिसमें हम एक लाइब्रेरी और रिक्रिएशनल सेंटर हम खोल रहे हैं। और मैं आप सबके थ्रू ये अपील भी करना चाहूँ कि हमें अभी भी किताबों की ज़रूरत है। अगर आप किसी को जानते हैं तो प्लीज़ हमारी लाइब्रेरी खुलने से पहले, इस मंथ के एंड में खुलने वाली है, खुलने से पहले हमें बुक्स और टॉयज अगर आप डोनेट कर सके तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। फिर मैं आपको उसी WPS में हम एक लीगल एंड ट्रॉमा काउंसलिंग सेंटर भी खोल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि WPS में जो सेक्स अब्यूज विक्टिम्स हैं या डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स हैं, WPS इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट दैट दे फेस। We feel that there is a need for legal as well as trauma counseling for those victims. So we are in collaboration with certain agencies. We are about to open a legal counseling center and a trauma counseling center at WPS Itanagar. These centers will run in collaboration with this library and recreational center. तो WPS में एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि औरतों और बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट किया जाए ताकि हमारे औरतें हमारे बच्चे सेफ महसूस कर सकें। Thank you for continuing to support our channel. For more news, follow and subscribe our Facebook and YouTube channel. Call our staff for news coverage below given number in the screen. Thank you and Dash Delay. Pinanang 32 after 4 hours.